السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں ولی کون ہوتے ہیں، اس کی کیا تشریح ہے، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر اسلام نے فرمایا، سنو اللہ کے بندوں میں بعض وہ بندے ہیں نبی اور شہید بھی اس پر رش کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ، ہمیں حال بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو بغیر مال اور تکلف کے محض اللہ کی وحی کے مطابق آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ خود نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جبکہ لوگ خوف زدہ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے جبکہ لوگ غم زدہ ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس حدیث سے مراد اللہ کے اولیاء جن کو اس نے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے مخصوص فرمایا اور اس کے ملک کے مالک، اور ان کو اپنی محبت کے لیے مخلوقات میں چن کر، محبت کے لیے مخلوقات سے چن کر اپنے فعل اور اظہار کا نشانہ بنایا اور قسم قسم کی کرامات سے مخصوص اور طبیعت کی خرابیوں سے پاک کیا۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور انسان ولی بنتا کیسے ہے؟ میں پاؤں دبا رہا تھا اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے، پاؤں دبا رہا تھا تو میں نے عرض کی حضرت کوئی کشف کا نسخہ بتائیں، کوئی کشف کا عمل بتائیں۔ یاد سے سنیے گا، جاگ کے سنیے گا۔ سو جائیں گے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ جو اپنی قسمت کو خود ہارنا چاہتا ہے تو اس کو ہارنے دیں۔ میں نے عرض کیا مجھے کشف کا کوئی عمل بتائیے، پاؤں دباتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تھوڑا کھا ندامت سے کھا، بس 2 لفظ، تھوڑا کھا ندامت۔ تھوڑا کھانا تو سمجھ آتا ہے، ندامت سمجھ نہیں آتی۔ یہ ندامت کیا چیز ہے؟ یہ ندامت کیا چیز ہے؟ ندامت زندگی کا وہ راز ہے جو اللہ کے ولی میں پیدا ہوتا ہے۔ ندامت، شرمندگی، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اللہ تیرا سامنا کر نہیں سکتا، کس منہ سے جاؤ کہ غالب، اللہ میں تیرا سامنا کر نہیں سکتا، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، لیکن تیری وسعتوں کا خیال ہے۔ تو بڑا کریم، واسع رحمت، وسیع رحمت والا، پر اپنے دل کو میں کیا کروں؟ کیوں؟ یہ دل کہتے ہیں تیرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں نا، کیا کروں؟ پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے، میرا دل چاہتا ہے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ ندامت ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، اور ندامت سے ولایت کے منازل طے ہوتے ہیں۔ ندامت سے
याद रखिएगा, विलायत की मनाजिल तय होती है। रोटी खा के नदामत, क्या मैंने उसके दर की गुलामी की है जो उसके दर के टुकड़े खा रहा हूं? क्या मेरी आंखों ने इताअत की है? क्या मेरे कानों ने उसकी बंदगी की है? क्या मेरे दिल ने वो इकरार और इजहार किया है? किस चीज के टुकड़े खा रहा हूं? क्या मैंने जो अहदो पैमान अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, रूहों को जब रूहें सारी जमा थीं, अलस्त, क्या तुम मेरा रब नहीं हूं? सारी कहने की या अल्लाह हमारे रब हैं। वहां रब का एतराफ किया। इसलिए रब्बना लकल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर जगह रब है। नदामत, इबादत करके नदामत, इसको इस्तिगफार कहते हैं। तस्बीह करके शर्मिंदगी, थोड़ा खा, नदामत से खा। सारी जिंदगी कदम कदम पे नदामत और शर्मिंदगी, नदामत और शर्मिंदगी। तफाखुर नहीं, फखर नहीं, ना ना ना, तफाखुर नहीं, नदामत और शर्मिंदगी। ये ऐसे कदम हैं जो तेरी जिंदगी में माल, दौलत, उरूज, कमाल और हैरत तक पहुंच जाएंगे। एक साहब कहने लगे, मैंने एक बंदे को देखा, वो तवाफ कर रहा था। जब वो हजर अस्वद के सामने आते, वो हंसती, लोग हट जाते। और उसी में बादशाह भी तवाफ कर रहा था, बादशाह के तवाफ पे न हटते। बादशाह ने पूछा, बावजूद जानने के कौन है? कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो कौन है? फिर जान के पूछा। कहा, अली बिन हुसैन है, सैयदना हुसैन के बेटे हैं। अच्छा, ये क्या है? तो फर्जदक ने कहा, शायर ने, तुम हुकूमतें को बादशाह हो, ये दिलों के बादशाह है। इनकी बादशाहत दिलों पे है, ये दिलों के हुक्मरान हैं। कहते मैंने उन्हें तवाफ करते देखा, फिर 2 नफल पढ़े तवाफ के, और कहा कि उसके बाद उन्होंने जो जारी की और उनके अंदर जो नदामत थी, कहा मैंने आज तक गुनाह करने वाले के अंदर भी वो नदामत नहीं देखी, वो इस्तिगफार नहीं देखा कि मौला तेरी मोहब्बत का हक अदा ना हुआ, तेरे इश्क का हक अदा ना हुआ, तुझसे कलाम करने का हक अदा ना कर सका। नदामत उस दर से निकली है, आले रसूल से। नदामत, फिर मैंने देखा हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम को अपनी दाढ़ी पकड़ के ऐसे तड़प रहे थे जैसे कोई सांप का डसा तड़पता है, या फिर जिस मुर्ग को आधा ज़बह कर दिया जाए वो तड़पता है कि अल्लाह अगर तूने तालिब के बेटे को माफ ना किया तो मैं हिलाक हो जाऊंगा। जन्नतें सजी उनके लिए हैं और उनके अंदर नदामत की कैफियत देखें। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि वो जब रोते थे, फजर की नमाज में जब किरत करते थे, रोते थे, सफों की सफें गिर जाती थी, सफों की सफें गिर जाती थी रोते रोते। नदामत की कैफियत थी, रब के सामने खौफ और शर्मिंदगी की कैफियत थी।
ये चेहरा अल्लाह को दिखाऊंगा कैसे? पांव दबाते हुए मैंने अपने हजरत से पूछा, कोई कश्फ के लिए कोई इनायत फरमा दे। बस 2 लफ्ज फरमाए, मेरी जिंदगी में याद है, जिसकी मश्क कर रहा हूं, अभी हासिल नहीं हो सका, मश्क कर रहा हूं। फरमाया, थोड़ा खा और नदामत से खा, शर्मिंदगी से खा। दरअसल ये नदामत सारी जिंदगी का फेल है, सारी जिंदगी का शोबा है। ये नदामत सारी जिंदगी का निजाम है। सारी जिंदगी हमने अपनी जिंदगी को नदामत में गुजारा। इसलिए फरमाया, नेक अमल करने के बाद जो इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसके नेक अमल को कबूल फरमाते हैं। इबादत के बाद इस्तिगफार, नेकी के बाद इस्तिगफार, ये सब नदामत है, ये सब नदामत है। इसको सोचें। हमारी जिंदगी में अगर नदामत का कदम शुरू हो गया, जब नदामत का कदम और नदामत की सांसें शुरू होंगी, फिर दुनिया के एतबार से, रूहानियत के एतबार से अपने आप को किसी को घटिया नहीं समझेंगे। बेनमाजी है, शराबी है, यहूदी, काफिर, शिया, देवबंदी, बरेलवी है, जहन्नमी है, फिर अपने आप को घटिया नहीं समझेंगे किसी को अपने से। मुझे अपने से फुर्सत है ही नहीं, मैं किसी और के बारे में क्या कह सकता हूं। नदामत, नदामत, तरक्की की राहें, नदामत उरूज और कमाल के पर हैं। इससे परवास होती है लाहूत और मलाकूत की, जबरूत की परवास होती है, रूहानियत की परवास, कश्फ की परवास होती है। नदामत, इसकी मश्क है सारी जिंदगी की। ये एक दिन की ना तस्बीह है, ना एक दिन का कोई निजाम है, सारी जिंदगी की मश्क है। मेरी भी, मैं भी कर रहा हूं, तालिब इल्म हूं, पूरा नहीं उतरा, सारी जिंदगी की मश्क है। और ये सारी जिंदगी की मश्क मौत तक अगर हो गई, लाजवाब सौदे सस्ते हैं, सारी जिंदगी की मश्क है। ये नदामत, ये शर्मिंदगी, शर्मिंदगी कैसे होगी? खाने की शर्मिंदगी कैसे होगी? करना शुरू कर दें, एक वक्त आएगा इसकी कैफियत खुलेगी, आप आंखों से देखेंगे। शर्मिंदगी का एक वजूद सामने आएगा। शर्मिंदगी का वजूद भी होता है, खुशी का वजूद भी होता है। ये क्या बात है? शर्मिंदगी का एक वजूद सामने आएगा। साइंस कहती है हमारा जो ईस्ट्रल वर्ल्ड है, इसके अंदर हर चीज का वजूद मौजूद है, और उसी वजूद से ये सारा सैटेलाइट का निजाम चल रहा है। एक वजूद, एक कायनात सामने आएगी और इंसान आंखों से देखेगा और आंखों से परखेगा, ये क्या है, ये कैसा निजाम है। और जिंदगी में एहसास होगा, नहीं, कोई एक और जहान भी है जो मेरी नजरों से ओझल है, जो मेरी नजरों से पोशीदा है। छोटा सा लफ्ज नदामत तो है, छोटा सा लफ्ज नदामत तो है, छोटा सा लफ्ज नदामत तो है, पर इस पे मेहनत सारी जिंदगी की है, इस पे कदम सारी जिंदगी के हैं, सारी जिंदगी। एक यह है कि अपनी सारी जिंदगी वजाहतों में गुजारूं, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, वजाहतों में गुजारूं। एक है कि शर्मिंदगी और नदामत हो।
मेरी रात कुछ अफसोस से गुजरी है। 3 बंदों से ज्यादा हमने मजमे से रुखसत किए हैं। एक बंदा पहले दिन से हर बंदे को मार रहा था, घोंसे थप्पड़, पहले दिन से लड़ाई करता है। दूसरा बंदा लड़ाई करता है, तीसरा बंदा लड़ाई करता है, जिद करता है। पता चला कि घर वालों ने कहा कि ये हमारे लिए नाक में दम किया हुआ है, इसको तस्बीह खाने भेजो। और वो एक से तो पता चला, एक के घर वालों का, इसको हमारे पास ना भेजें, आपकी मेहरबानी अपने पास रखें। दुनिया में जो घर में कहीं नहीं, उसको तस्बीह खाने सारे यही नहीं आते। आप तो इस मिजाज के नहीं हैं। आखिर मजबूरन इस तरह कई खवातीन हैं, और अभी भी 3-4 खवातीन लिस्ट में हैं। मिजाज के अंदर हठ धर्मी, गुस्सा, लड़ाई, मार कुटाई। जो छुड़वाने गया है कल, उसने उसको भी नीचे उठा के उत्ते तल्ले पर भोड़ा। ऐसा से शर्मिंदगी मुझे है, मैं अपनी नदामत में हूं। मेरी दुआओं में कमी, मेरी तरबियत में कमी। वो बंदा तस्बीह खाने से क्यों गया, मुझे खुशी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा निकल गया खस कम जहां पाक, नहीं, नदामत है, शर्मिंदगी है, मजबूरन उसको भेजना पड़ा। हमारे अहबाब इस मजमे में मौजूद हैं। परसों एक साहब को, वो हर बंदे से कहते हैं 7,000 लगेगा, 5। पिछले साल भी वो साहब आए, मजमा लेके बैठे थे, और हर बंदे से कहते थे मैं ये, मेरे पास ये है, ये है, ये है। कुछ लोग कहते हैं मैं हजरत का खलीफा हूं, मैं कजन हूं। कुछ कहते हैं मैं मामू हूं, कोई कहते हैं मैं भांजा हूं। शर्मिंदगी है। उनको वापस भेजा, घर वापस भेजा। कितना किराया लगा के आए होंगे, घर वालों ने कितनी मेहनत करके उसको भेजा होगा। शायद वहां जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपनी आदत और मिजाज से बाज ना आया। फिर उसको ये नहीं पहले दिन 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन बर्दाश्त किया, उसको सुलझाया, उसको समझाया, उस पर मेहनत की। उसके बावजूद मुझे अपने ऊपर नदामत है, शर्मिंदगी है। मैं कल से रात की कैफियतों में मुसलसल नदामत में हूं। मेरे कई बार आंसू निकले हैं। तो जिंदगी इस नदामत में गुजरे, इस शर्मिंदगी में गुजरे। नेकी करके नदामत, यही सबसे पसंदीदा अमल मेरे रब को है। इबादत करके नदामत, शर्मिंदगी। खैर के काम करके शर्मिंदगी, नदामत। ये सफर अगर इस तरह शुरू हो गया, इस तरह अगर सफर शुरू हो गया, मुआशरे में एक अजीबोगरीब दुनिया कायम हो जाएगी। अहलुल बैत का मुआशरा यह था, सहाबा का मुआशरा यह था, रियासत मदीना यही थी, यही थे, जिसमें सारा कसूर मेरा है। मेरे हजरत फरमाते थे, जब क्यों क्यों अपने लिए होगा तो खैर होगी, जब क्यों दूसरों के लिए होगा फसाद खड़ा हो जाए। थोड़ी सी लाइट गई है, सड़कें ब्लॉक कर दी। पानी नहीं है, सड़कें ब्लॉक कर दी। सड़कों पे जलाओ घेराव किया। ये वो मुआशरा है जिस मुआशरे में अदम बर्दाश्त है, नदामत नहीं है। बादशाहों के बारे में, वर्दियों के बारे में हमारे अल्फाज मुंह खुल गए, मुंह खुल गए। जब नदामत की दुनिया आती है तो फिर बोल और होते हैं, फिर कैफियत और होती है, फिर मिजाज और होता है, फिर तबीयतें और होती हैं। मुझे एक साहब कहने लगे,
पहले मैं टीवी पे बैठ के तबसरे सुनता था, कहा कि बस जब से तस्बीह खाने आया हूं अब बैठ के अपनी गुज़िश्ता जिंदगी के तबसरे करता हूं अपने आप से। सब छोड़ दिए मैंने तबसरे। कहा उसका नुकसान यह हुआ मेरे दिल में लोगों के लिए नफरत पैदा हुई, फलां तो ऐसे है, फलां तो ऐसे है, फलां लीडर ऐसे है, फलां सियासी बंदा, फलां ऐसे है, फलां ऐसे है। नफरत पैदा हुई मेरे दिल में, मैंने छोड़ दिए। तस्बीह खाने का मौजू हालात हाजरा नहीं है। 1965 में एक बहुत बड़ा रूहानी निजाम बना 3-4 दिन के लिए। वहां निगरान बैठे। 3-4 दिन के बाद उन निगरानों ने जो कारगुजारी रिपोर्ट लिखी उसमें एक लफ्ज लिखा, यहां जमीन से नीचे आसमान के ऊपर की बातें हैं, जमीन और आसमान के दरमियान की बात नहीं है, जिसको हालात हाजरा कहते हैं। हालात हाजरा, नफरतें पैदा होती हैं, घर टूट गए, सगे भाई टूट गए इन तबसरों से, इन हालात हाजरा से। मैं इस पार्टी का तो उस पार्टी का, जिंदगियां टूट गई, जनाजों पे ना पहुंचे, सिला रहमियां खत्म हो गई, सिला रहमियां खत्म हो गई। हाँ, कता रहमियां आ गई। कता रहमी में जिंदगी थोड़ी, रिस्क थोड़ा, सेहत थोड़ी, जिंदगी की बरकतें खत्म हो गई। सिर्फ एक सबक हटा, वो सबक था नदामत का। बस इस सबक के हटते ही मुआशरा सारा टूट गया और टुकड़ों में बट गया। फिरकों के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, सियासत के नाम पे, जुबानों के नाम पे, सूबों के नाम पे, इलाकों के नाम पे, टुकड़ों में। जब नदामत आएगी एक कश्फ का जहान और एक कश्फ की दुनिया पैदा होगी। जब नदामत आएगी एक दुनिया में अनोखा निजाम पैदा होगा। फिर उससे पता है कौन निकलेंगे? उससे वली बनेंगे, विलायत का मुआशरा बनेगा। विलायत का कहा, जब नदामत थी तो रोटी पकाने वाला भी वली था, बैतुल खला साफ करने वाला भी वली था, झाड़ू देने वाला भी वली था, पढ़ाने वाला भी वली था, पढ़ने वाला भी वली था, आने वाला भी वली था, दरवाजा खोलने वाला भी वली था। जब नदामत का मुआशरा हुआ, हंजला मुनाफिक हो गया, शोर करते हुए सहाबी सड़क गली में जा रहे। एक बड़े सहाबी मिले, क्या हुआ? कहने लगे हुजूर के पास बैठते हैं कैफियत और होती है, घर में जाते हैं कैफियत और होती है। मुनाफिक का ये तो बात मेरी भी है। अगला मिला, उन्हें ये बात मेरी भी है। हुजूर के पास पहुंचे, अजाली साथ बैठे हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये मसला है। मुस्करा दिए, फरमाया ये कैफियत अगर मुसलसल रहे तो फरिश्ते मुसाफा करते रहे, लेकिन ऐसा होता है घर में बाहर में। उनके अंदर अपनी बेयकीनी का हाल ये था, ये यकीनी का हाल ये था कि हम बेयकीन हैं, हमें कोई पता नहीं। और मैंने एक हज में देखा, इमाम ज़ैद को सिर्फ एक आयत के ऊपर उन्होंने कई घंटे, इन तुअज़्ज़िबहुम इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अज़ाब दे दे, तेरा बंदा हूं, माफ कर दे, तू कातिर है। कहा
ये हस्तियां बस ये दुआ कर रही, रो रही हैं, अजाब दे दे, तुझे हक भी है, तेरा बंदा हूं, माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है। इतना अपने बारे में बेयकीन है और इतनी नदामत है। ये रूहानियत की राह की ऊंची परवाज अगर कोई जाना चाहता है, ऊंची परवाज अगर जाना चाहता है और रूहानियत का शहबाज बनना चाहता है, इसी कहते हैं शहबाज कलंदर, इसे कहते हैं शहबाज। एक होता है बाज, एक कहते हैं शाह कहते हैं बादशाह को, उसकी और कलंदर कहते हैं उस शख्स को जिसकी रूह के अंदर मन में अल्लाह बस जाए। और मलंग कहते हैं उसको, मल कहते हैं पहलवान को, या खटमल, खाट का पहलवान है, छोटा सा, बंदे को सोना नहीं देता। मल अंग, जिसका अंग अंग पहलवान हो, अल्लाह उसके हबीब कमली वाले की गुलामी में कहा नहीं, ये जिंदगी नहीं है नाफरमानी की, उसका पहलवान ताकत से उसको रोक दे, कहा नहीं, मैंने कमली वाले की गुलामी की जिंदगी गुजारनी है। वो मलंग है जिसका अंग अंग पहलवान हो। मल अंग, मल कहते ना, अंग अंग मेरा दुख रहा है, मेरा जिस्म का हिस्सा हिस्सा दुख रहा है। मल अंग, जिसका पल पल, लम्हा लम्हा, सांसें सांसें कमली वाले की गुलामी में गुजरे। हाँ, लोहा जब आग में जाता है फिर जाके लाल होता है। जब अल्लाह की मोहब्बत और इश्क मुस्तफा की पल पल की गुलामी में बंदा जाता है फिर लाल होता है। लाल शहबाज कलंदर। अल्लाह के इश्क में लोहा आग से बाहर लाल होता है या आग के अंदर? नागवारियों की आग, लोगों के तानों की आग, लोगों की बातों की आग, कभी अंदर की आग निकल जाए यहां से, कभी बाहर की कहानियां, ये सारी आग में चलता चलता सच्ची राहों का ना छोड़ा, ये बन गया लाल। और फिर रूह की दुनिया का शहबाज और कलंदर जिसके अंग अंग में अल्लाह बसा, और मलंग जिसका एक एक अंग पहलवान बन के उसको गुलामी मुस्तफा से न हटा सका। ये फिर जिंदगी उस वक्त आती है जब नदामत का पहला कदम शुरू होता है। पहला कदम शुरू होता है। इंशाल्लाह चलाना है ये कदम। मौत तक का सफर है, मौत तक का सफर है। ये कदम चलना भी है, चलाना भी है। सफर नहीं रोकना है। मैंने एक इश्तिहार देखा, एक कोई टॉनिक का इश्तिहार था। बच्चा था, फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल गई ऊपर, उसको पकड़ने के लिए ऐसे छलांग लगाई, उसके जमीन से कदम उठे हुए हैं, नीचे सिर्फ एक लफ्ज लिखा है, थकना नहीं, रुकना नहीं। बस खत्म। रुकना नहीं, थकना नहीं। आपने भी मैंने भी रुकना नहीं। इंशाल्लाह बस ये सबक है, ये सबक है जिंदगी का, और ये सारी जिंदगी का सबक है। एक पल का सबक नहीं है, सारी जिंदगी का सबक है, सारी जिंदगी का सबक है। मैं रोजाना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे पूरी दुनिया की कालें सुनता हूं। यकीन जानिए उनके अंदर की कैफियतें जब देखता हूं, दिल का अंग अंग कहते वाह मौला, किन सच्ची राहों पे दुनिया लग गई है। तो रुकना नहीं, बोलो। ये अल्लाह उसके हबीब की जिंदगी, ये आले रसूल असहाब रसूल की जिंदगी, ये औलिया सालेहीन की, कुतुब अब्दाल गौस कलंदर नकीब नजीब अबरार औताद की जिंदगी है इंशाअल्लाह ताला।
ایک عمل روز کرتے ہیں، بندش توڑ لاہوتی عمل، انگلیوں میں انگلیاں دیتے ہیں اور تصور کرتے ہیں اللہ یہ زندگی ایسی جکڑی ہوئی ہے، میں نے اپنی زندگی کے اس شیطانی جال سے نکلنے کی بڑی کوشش کی پر نکل نہیں سکا، میں کیا کروں میرا اللہ، اب تیرے در پہ آیا ہوں اور آ کے اپنے آپ کو حوالے کیے ہیں اور حوالے کر کے تیرے نام کو پکارتا ہوں۔ کسی نے یہ جو اسم اعظم پڑھ رہے ہیں غزالی کا اسم اعظم ہے، کس نے غزالی سے پوچھا اسم اعظم کیا ہے؟ یہی اسم اعظم ہے جو ابھی آپ پڑھیں گے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم اسے کہتے ہیں جس کو یقین دھیان سے پڑھ کے جو مانگا جائے، جس وقت مانگا جائے، جس لمحے مانگا جائے، اللہ غیب سے ضرورتیں پوری کر دے، اللہ غیب سے ضرورتیں پوری کر دے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ آمین۔ سلطان الاسکار، لا الہ الا اللہ، سلطان الاسکار دل کے اوپر ضربیں لگائیں گے۔ میں نے ایک کباڑیے کی دکان کے باہر دیکھا، لوہے کو ہتھوڑے مار رہا تھا، زنگ لگا ہوا موٹا لوہا تھا، اس سے زنگ کے ٹکڑے اتر رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہ یہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کی۔ یہ مارتا رہا مارتا رہا مارتا، حتیٰ کہ زنگ سارا اتر گیا اور اصل لوہا نکل آیا اور وہ قیمتی ہیرا تھا۔ صبح بیٹھ کے الا اللہ کی ضربیں دلوں کو لگائیں، الا اللہ کی ضربیں۔ فرمایا حضرت عثمان، لال شہباز قلندر کا اصل نام عثمان ہے، میں ان کے مقام جہاں سے آئے تھے روس کی ریاست میں وہاں گیا۔ عثمان صبح بیٹھ کے اللہ کی الا اللہ الہ کی اتنی ضربیں لگاتے تھے، اتنی ضربیں، ان کے ساتھ مجمع بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اللہ والوں کی مشقیں ہیں، اللہ والوں کی زندگی ہے، تو پورے جذبے کے ساتھ پھر مراقبہ اور دعا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 آمین. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أكرم من كل كريم ويا أعظم من كل عظيم أغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاقي العاقبة أنت الله على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک بات سنیے گا ذرا، نزلہ زکام کھانسی موسم بدلے گا ہوگا، اس کے لیے ایک بہترین ہے، رات سوتے ہوئے ناک میں تیل ڈال لیں. روزے کے ساتھ تو نہیں ڈال سکتے، سوتے ہوئے ناک میں تیل 3-4 قطرے. پرانی بات ہے، ایک بابا جی تھے، ان کو خراٹے بہت آتے تھے، کسی کو سونے نہیں دیتے تھے، ناک کی ہڈی. میں سفر میں تھا، میں نے تیل تھوڑا سا کیا گرم ہلکا اور اس کا ناک میں ڈالا وہ تڑپے. میں ناک کو پکڑ کے یوں کروں جیسے اندر اور جائے حلق میں چلا جائے. میں خود بھی اتنا ڈالتا ہوں، حلق میں چلا جائے، چند لمحوں کی جلن ہوگی. اچھا 8-10 دن کے بعد وہ جلن بھی ختم ہو جائے گی. پھر جو وہ بابا بیٹھ کے میرے لیے دعائیں کر، براوی تھا، بروہی بولتا تھا، بلوچ تھا، دعائیں کرتا تھا میرے لیے. تو یہ ناک میں ابھی سے تیل ڈالنا، موسم بدلے تو ایسا ہوتا ہے، یہ بدلتے موسم میں ایسا ہوتا ہے. تو ناک میں تیل مسلسل ڈالیں. یاد رہے گا ٹوٹکا؟ ہے جی، ٹوٹکا یاد رہے گا؟ چلے السلام علیکم.